ایک نظر ڈالیں گے اسدالدین اویسی کے پولیٹیکل کریئر پر۔ اسدالدین اویسی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اسدالدین اویسی اور ان کے پریوار کا پرانے حیدرآباد علاقے میں کافی رسوخ ہے۔ یہ اس علاقے سے 3 بار لوک سبھا کا چناو جیت چکے ہیں۔ اسدالدین اویسی کے فادر صلاح الدین اویسی اسی کانسٹیٹوئنسی سے 6 بار لگاتار چناو جیتے تھے۔ اسدالدین اویسی پرانے حیدرآباد سے 2 بار MLA بھی رہ چکے ہیں۔ لندن سے لا گریجویٹ اسدالدین اویسی ایک اثردار سپیکر ہیں۔ یہ اپنے بیانوں کی وجہ سے سرخیوں میں بنے رہتے ہیں۔ اسدالدین اویسی مائنورٹیز کے لیے انجینئرنگ، میڈیسن، مینجمنٹ، فزیو تھراپی، فارمیسی، نرسنگ اور آرکیٹیکچر کے 10 کالج چلاتے ہیں۔ ان کے 2 ہاسپٹل بھی ہیں۔ لندن سے لا گریجویٹ اسدالدین اویسی آپ کی عدالت میں اپنی پیروی خود کریں گے۔ تو مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام اسدالدین اویسی پر۔ آپ کی عدالت میں آل انڈیا مجلس اتحاد کے پریزیڈنٹ اسدالدین اویسی پر الزام ہے کہ یہ اسبھیہ بھاشا کا استعمال کرتے ہیں۔ اویسی صاحب، بہت سارے بھاشن میں نے آپ کے سنے، انٹرنیٹ پر بہت سارے لوگ آپ کے ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں۔ آپ جو بھاشا بولتے ہیں بہت سویٹ، اچھی بھاشا آپ بولتے ہیں۔ جیسے 31 مئی 2014 کو ایک بڑے آدمی کے بارے میں آپ نے کہا وہ کتا ہے، اس کی نسل کتی، سب کتے۔ وہ جو پبلک میٹنگ تھی ہماری، اس میں اسی دن بنگلور میں 6 لوگوں کو پکڑا گیا تھا، جس میں سے 2 پر گولی ماری گئی تھی جو حیدرآباد کو آ رہے تھے، اور ان کا ٹارگٹ پولیس نے بتایا کہ شاید وہ مجھے یا ہمارے کسی MLA کو۔ تو اس پس منظر میں وہ بات کہی گئی، مگر یہ جو اس کو کٹ اینڈ پیسٹ جاب کیا گیا، ایک زیم TV کچھ ویب سائٹ ہے پاکستان کا، اسی کے ذریعے مجھے معلوم ہوا۔ اب یہ تو بتائیے کس کے بارے میں کہہ رہے تھے آپ؟ نہیں سر، اب جس کے بارے میں کہنا تھا ان کے بارے میں ان کو معلوم ہوگا۔ اب وہ بات ہو گئی، اب اس کو نیا کیوں پھر اس کو شروع کیا جائے؟ کیونکہ جنہوں نے کہا تھا کہ ٹائر کے نیچے کو آ جائے، تو سر اب اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، آپ ایسا کرتے ہیں کہ پبلک کے لیے اور عدالت کے لیے میں ایویڈنس کے طور پر وہ ویڈیو سنوا دیتا ہوں۔ ضرور ضرور ضرور۔ اور پھر پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کہا تھا اور کتنی میٹھی بھاشا کا آپ استعمال کرتے ہیں۔ ضرور۔ یاد رکھو نوجوانوں، یہ کتے ہیں، یہ کتے کے بچے ہیں۔ تم اللہ کی طرف پلٹو، یہ ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ہم کو کتے کا بچہ بول رہا تھا، وہ کتا، اس کی نسل کتے، سب کتے۔ اویسی صاحب، حیدرآباد کے لوگوں کو میں جانتا ہوں، وہ تو بڑی ڈگنیسی سے، بڑے سویٹ بولتے ہیں۔ پڑھائی بھی آپ کی لندن میں ہوئی ہے، یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ یہ ہم نے سیکھا ان لوگوں کی باتیں سن کر جو 50 سال سے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم گونگے ہیں۔ ہم نے ان سے سیکھا جو انہوں نے کہا تھا کہ اس دھرتی کو سمتال ہونا پڑے گا، 5 دسمبر کو کہا گیا تھا۔ ہم نے ان کو دیکھ کر بولنا شروع کیا جنہوں نے کہا تھا کہ ایک دھکا اور دو۔ ہم نے ان کو دیکھ کر اپنی زبان کھولنے میں مجبور ہو گئے جنہوں نے کہا تھا مہاراشٹرا کے ایک بہت بڑے لیڈر ہے کہ مسلمان لڈے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو سنا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ریلیف کیمپ اس لیے چلائیں تاکہ آپ کا پروڈکشن سینٹر بڑھے۔ ہم نے ان لوگوں کو سنا جنہوں نے کہا تھا کہ کوئی ٹائر کے نیچے اگر کوئی کتے کا بچہ آ جائے تو سر بتانا یہ ہے کہ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ایک اصول بن جائے پورے ملک میں کہ کوئی بھی اس طرح کی بات نہ کرے۔ میں یقیناً آپ جو آپ نے یہ بات دیکھیے، میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، ذرا میری بات کو مکمل میری بھی بات سن لیجئے۔ آپ نے یہ بات 31 مئی 2014 کو کہی،
जब मुल्क नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री इलेक्ट कर चुका था, देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा इस्तेमाल करना अच्छी बात है? सर, जमहूरियत में अगर कोई मुल्क का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, क्या उनके लिए बात ज़ेबा देता कि वो ये कहें कि जो टायर के नीचे आ जाए वो कुत्ते का बच्चा? क्या ये इनके लिए ज़ेब देता जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने थे अटल बिहारी वाजपेयी? हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा। क्या इनके लिए ज़ेब देता जिन्होंने कहा था कि एक धक्का और दो, और वो खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स बन गए? तो ये चीज़ है कि आपकी बात सही है कि इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मगर थाली तो दो हाथ से बचती है, एक हाथ से नहीं रोक सकती। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि दूसरी तरफ से भी, हर तरफ से भी। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा हो, मुलायम सिंह यादव, उनकी भी बहुत सेवा की आपने। वो भी दिखा दीजिए। मैं उसकी बानगी भी अदालत में पेश कर देता हूं। आपने कहा ये मौलाना नहीं, आरएसएस की चड्डी पहने हुए मुलायम है। ये मुलायम सिंह ख्वाब देख रहा है, गैर जरूरी अपने आप को मौलाना मुलायम। ये मौलाना नहीं है, बल्कि आरएसएस की चड्डी पहना हुआ मुलायम सिंह है। इसको शिकस्त देना है आजमगढ़ की आवाम को, और आजमगढ़ की आवाम को बताना है कि आजमगढ़ शिबली की सरजमीन है। अब मुलायम सिंह यादव तो कहते हैं कि वो जिंदगी भर आरएसएस के खिलाफ लड़ते रहे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ लड़ते रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी कब बनी? बाबरी मस्जिद के शहादत के उस मलबे के ऊपर समाजवादी पार्टी बनी, और हमेशा मुलायम सिंह यादव ने यही बात कहते रहे कि मैं मौलाना हूँ, और लोगों ने देख लिया कि ज़्यादा मुझे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, और उसके बाद इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद 600 से ज़्यादा कम्युनल राइट्स और इंसिडेंट्स हुए। अखिलेश यादव के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कितने वाक़यात हुए। इसके बावजूद भी जो पार्टी अपने आप का बड़ा दावा करती है कि हम मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं, हर एतबार से वो लोग नाकाम साबित हुए। रिजर्वेशन का वादा किया गया था 16% देंगे, वो ख़त्म हो गया। बच्चों को छोड़ने की बात की गई थी, वो मजाक बन के रह गया। और फिर मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि विश्व हिंदू परिषद के लीडरों के साथ मुलायम सिंह यादव ने वो जो 84 कोसी यात्रा से पहले कहा कि खैर सगाली मुलाकात है। 2 घंटे की मुलाकात, कोई मुगल आजम पिक्चर देख रहे थे क्या मुलायम सिंह? 2 घंटे की मुलाकात, और उसके बाद आप देखिए सब तूफान मचता गया। तो ये असली चेहरा है मुलायम सिंह का, और इसको बेनिकाब करना मैं समझता हूं कि मेरा फर्ज है कि लोगों को बताऊं। और आखिरी बात सर, आजमगढ़ में मुझे 1-1.5 साल से जाने नहीं दिया जाता। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी बात को बोल सकता हूं, मगर मुलायम सिंह क्योंकि वहां के एमपी हैं, परमिशन देकर हमको कैंसिल कर दिया जाता है। 4 मरतबा हो गया आजमगढ़ में। आप आग लगा देंगे आजमगढ़ में जाएंगे तो? नहीं सर, अगर मैं आग लगाता हूं, अगर मैं आग लगाता हूं या फिर मुलायम सिंह को मैं नीचे गिराता हूं, ये तो वक्त तय करेगा। अगर मैं जाकर कोई गलती करता हूं, आप मुझ पर फौरन केस बुक करिए। मैं कई मरतबा वहां के एसपी से बात किया, मैंने कहा कि अगर मैं गलत बोलूंगा, आप बोलिए कि रुक जाइए, मैं रुक जाऊंगा। बोला हम इस मैदान में हैं, इस सियासत में हैं, आप हमको जेल को ले जाइए, केस बुक करिए, हम तैयार हैं। लेकिन आप कहते हैं कि दूसरे ऐसी भाषा बोलते हैं उससे आप सीखते हैं। क्या कभी मुलायम सिंह ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया? मुलायम सिंह यादव ने, खैर उनको बात ही करना नहीं आता सर, क्या बात करेंगे वो। अब उस पर क्या, मैं उन पर ज्यादा पर्सनल अटैक नहीं करना। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया? सर, अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा, मैं आपको आउटलुक मैगजीन का हवाला दे रहा हूं। जब 2002 के उस बड़े प्रोग्राम और जेनोसाइड के बाद जब असेंबली के इलेक्शन हुए, तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गुजरात के अपने तकरीरों में क्या क्या नहीं कहा। जेम्स लिंगडो, अहमद भाई पटेल, मियां मुशर्रफ, क्या हम ये कैंप्स चलाएंगे इसलिए कि यहां पर प्रोडक्शन सेंटर हो जाए आपका?
सर आप भूल चुके होंगे, मैं तो नहीं भूला। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। और जब वो आपकी अदालत में आए तो हमने उनसे पूछा था और उन्होंने कहा कि मुझे माफी मत दो, अगर मैंने गलती की है तो मुझे फांसी पर लटका दो। उन्होंने कहा 125 करोड़ देशवासी मेरे भाई हैं, चाहे नोच डालो, भेदभाव नहीं करूंगा। लेकिन आप कुत्ता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। सर भेदभाव की आप बात कर रहे हैं। मुझे एक बात मुझे बता दीजिए, क्या हिंदुस्तान का वजीर आजम पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रेसिडेंट एड्रेस के डिबेट में ये जुमला जेब देता है उनको कि 1200 साल की गुलामी? क्या मतलब था उसका? 1200 साल की गुलामी से हमको आजादी मिली। 650 साल तो मुसलमान भी हुकूमत की है इस मुल्क में, तो क्या वो भी गुलामी थी? मैं मानता हूं अंग्रेजों के खिलाफ हम तमाम ने मिलकर लड़ा, वो गुलामी का वक्त था, मगर उसको आप 1200 साल की बात करते। दूसरी बात, 15 अगस्त को लाल खिले से वजीर आजम ने कहा कि 10 साल का मोरेटोरियम होना चाहिए कम्युनल राइट्स के। 10 साल क्यों, 100 साल चाहिए, ले लीजिए। मगर ये कैसे टास्क मास्टर हैं? वो बोलते कुछ हैं और फिर उन्हीं के एमपी योगी कुछ और बोल देते हैं। ये कैसे टास्क मास्टर हैं कि साक्षी महाराज बोलते कि पूरे मदरसे टेररिज्म के सेंटर हैं और फिर वजीर आजम की हुकूमत 200 करोड़ देती है मदरसों को। ये कैसी बात है, मुझे समझाइए आप। कि एक वजीर मनिका गांधी कहती है कि गाय को काटा जा रहा है, कैटल को काटा जा रहा है, फिर ये हुकूमत जो मशीनरी आती है उस जानवर को काटने के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी 10 से 6% कर देती है। तो ये जो है ना सर, ये जो आपकी बात बिल्कुल नहीं, ये जो जेकिल एंड हाइड की पर्सनालिटी है, आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हो सकते, मगर मैं जो आपके सामने हूं वो अंदर भी हूं और बाहर भी हूं। मगर ये बात कि भाई मैं इस दूध का धुलावा हूं, मगर मेरे साथी कर रहे हैं, मुझे मत बोलिए, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, ये कैसे हो सकता है? ये हमको बता दीजिए कि आप चीफ मिनिस्टर थे, अभी आपने कहा कि मैं भेदभाव नहीं करता हूं। अक्षरधाम का जजमेंट आया, जिस वक्त बीजेपी पावर रिजल्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मुसलमानों को टारगेट बनाया गया और इन्वेस्टिगेशन गलत किया गया और इनको सिर्फ नाम की बुनियाद पर 10 साल 11 साल उनके खराब हो गए। क्या ये भेदभाव नहीं है? मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये भेदभाव नहीं है कि आज गुजरात में कोई अगर अपना घर बेचना चाहता है तो हुकूमत से परमिशन लेना पड़ेगा। आज वजीर आजम बोलते हैं मैं गंगा को साफ कर दूंगा, मगर क्या यह बात गलत है सर कि वहां पर जुहापुरा के इलाके में पूरा अहमदाबाद का जो मेडिकल हॉस्पिटल्स का जो गंदगी है, वेस्ट है, लाकर वहां पर डंप किया जाता? ये हम बातें करते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता। आपकी सारी बातें ठीक है। नहीं ठीक नहीं है, सही है गलत है, बता दीजिए। आपको सारी बातें कहने का हक है और बहुत सारी बातें लोग गलत करते हैं, कहने का हक है, लेकिन कुत्ता कहना ये मुझे समझ नहीं आता। नहीं सर, आप इस बात को समझ लीजिए कि जिन्होंने हमको ये कहते हैं कि टायर के नीचे कोई कुत्ते का बच्चा आ जाए, वो भी नहीं उसके सर